میں ہے, یسوع کے نام میں اس کا ڈپریشن جاتا ہے. اگر کوئی بے اطمینانی میں ہے, یسوع کے نام میں پیس, اطمینان زندگیوں میں ہو. جی آج کے کلام کا جو عنوان ہے وہ ہے سلامتی کا شہزادہ. سلامتی کا شہزادہ. اس دنیا میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے خدا یسوع مسیح کی شخصیت بائبل کے اندر بڑے زور سے بڑے واضح بیان ہوتی ہے. سو آئیں میرے ساتھ یسایہ 9واں باب اور اس کی 6 آیت. تعریف ہو 6 تا 7 آیت. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی, اور اس کا نام عجیب, مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. آمین. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا, اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی. آمین. یسایہ یسوع مسیح سے 750 سال قبل از بیان اس نبوت کو کر رہے ہیں, جو روح القدس کی قدرت سے, روح القدس کے الہام جو اس کو ملا کہ کیسے یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوگی وہ شخصیت کیسی ہوگی. سو مختلف جگہوں پر خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتایا گیا, لیکن آج یسایہ کی کتاب میں سے دیکھیں گے کہ کیسے اس بچے کے بارے میں جو آج سے 2000 سال پہلے چرنی میں پیدا ہوا, سینکڑوں سال پہلے بنی اسرائیل پر, دنیا پر یہ بھید ظاہر کیا گیا کہ ایک ایسی دنیا کے اندر ہستی جنم لے گی, ایک ایسا بچہ آئے گا جو سلامتی کا شہزادہ ہوگا. آمین. جس کے پیدا ہونے کا مقصد سلامتی ہوگا. دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ گزرے جن کی حکومتوں میں سلامتی نہیں تھی. انہوں نے جبر دنیا کے اوپر حکمرانی کی, دوسری قوموں کو رگیدا, دوسرے معاشروں کو دنیا میں آ کر تباہ برباد کیا. مگر یہ بچہ جس کا جنم 2000 سال پہلے ہوا, اور اس کی پیدائش سے پہلے 750 سال پہلے یہ بتایا کہ یہ بچہ کیسا ہوگا, اس کا مشن, اس کا مقصد کیا ہوگا. سو کرسمس کا جو پیغام ہے کہ اس دن ہمیں یہ اس بات کی یاد دلایا جاتا ہے کہ یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ ہوگا. آمین. وہی دنیا کے اندر سلامتی کو لائے گا. سو یہاں 2 پہلو بیان کیے گئے, یسایہ نبی کی معرفت, یسوع مسیح کا تجسم, اور پھر یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی. گو ازل سے اب تک وہ بادشاہ ہے, اب بھی وہ باپ کی دانی طرف ہے. بائبل میں لکھا ہے زمین آسمان کا اختیار مجھے دیا گیا ہے. اب بھی لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب کے اندر کہ اس کے کوئی بند کیے وہ کو کوئی کھولتا نہیں, اور کھولے وہ کو کوئی بند, سب اختیار اسی کے پاس ہے. لیکن ایک سما, ایک وقت ایسا بھی ہوگا جب زمین پر اس کی بادشاہی ہوگی اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. اس لیے دنیا کے لیے یہ گڈ نیوز نوید ہے آج کہ جس جگہ پر یسوع کا نام لیا جاتا ہے, یا دنیا کی آج بھی قومیں جیسے یسوع کا نام سنتی ہے, پڑھتی ہیں, اگر بات کچھ قومیں نہ مانیں یسوع مسیح کی مصلوبیت کو کہ وہ نجات دہندہ ہے, یا وہ 100% اپنے آپ کو مسیح نہ کہیں, غیر مسیح ہو, غیر لوگ ہو, لیکن تو بھی انہیں پتہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جو سلامتی کا شہزادہ ہے. آمین. یہ وہی شخصیت ہے جس جگہ پر میجورٹی میں اس کے لوگ آج دنیا کے اندر بعد ہے, وہاں سلامتی ہوتی ہے, وہاں امن ہوتا ہے.
जिस जगह पर मेजॉरिटी के अंदर उसको मानने वाले मौजूद है, वहां लोग उन जगहों पर, उन एरियाज के अंदर जाने की लोग ख्वाहिश करते हैं, क्योंकि वहां सलामती है, वहां अमन होता है। आमीन। इसलिए बताया गया कि ये सलामती का शहजादा होगा। प्रेज गॉड। और जब खुदावंद यीशु मसीह की 1000 साल बादशाही होगी, फिर कैसा एक दौर होगा। आए यशायाह ही की किताब के अंदर देखे कैसा वो दौर होगा। तारीफ हो 11वां बाब यशायाह। तारीफ हो, तेरा शुक्र हो। लिखा है पहली आयत से, और यस्सी के तने से एक कोम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 वर्ष शाख पैदा होगी, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ती से मस्किनों का इंसाफ करेगा। आमीन। रास्ती से वो मस्किनों का, वो किसी के कहने की कोई हाजत नहीं होगी, बल्कि वो खुद इंसाफ करेगा रास्ती से, और अदल से ज़मीन के खास खाकसारों का फैसला करेगा, और वो अपनी ज़बान के असा से ज़मीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा, और उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। पस भेड़िया, छठी आयत, पस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा। वो ऐसा माहौल, ऐसा ज़माना होगा, फक्त सलामती ही सलामती होगी। आमीन। क्या होगा? पस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा। ऐसा सलामती का दौर होगा जब खुदावंद यीशु मसीह की 1000 साल बादशाही होगी, कि चीता बकरी के बच्चे के साथ रहेगा। कोई किसी को जो जाबर होगा किसी को नुकसान नहीं देगा, अमन होगा। इब्लीस उस दौर के अंदर बांधा जाएगा। सो यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में बताया गया कि वो सलामती का शहजादा होगा। 1000 साल बादशाही का बाइबल के अंदर बताया कैसा वो दौर होगा। जुल्म नहीं होगा, कोई कौम किसी के खिलाफ जंग नहीं करेगी, और खुदा कैसे आगे बढ़ाएगा, कैसे सलामती को बर्पा करेगा। और आगे क्या लिखा है? और बछड़ा और शेर, बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे। आमीन। नन्हा बच्चा उनकी पेशरोई करेगा। ऐसा सलामती का दौर होगा कि छोटा बच्चा भी चीतों को, शेरों को गाइड करेगा। अमन होगा, नेचर वापस चली जाएगी जैसे अदन के अंदर थी। कोई दरिंदा किसी इंसान को जर नहीं पहुंचाएगा। कोई कबीला ऐसा जो आज खून खराबी कर रहा है, उस दौर के अंदर अमन होगा। और उस दौर की बेसिक तमाम कौमें इंतजार कर रही है जिन्होंने यीशु का नाम सुन रखा है, और चर्च बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा है। से ये वही बच्चा जो 2000 साल पहले पैदा हुआ, जिसने जन्म लिया चरनी के अंदर, बताया कि ये बच्चा जब बढ़ेगा अपनी खिदमत के अंदर, 30 साल जिंदगी के अंदर भी उनकी जिंदगी के अंदर, खिदमत के अंदर अमन ही अमन था। किसी के साथ उन्होंने जंग नहीं की। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे बादशाह, ऐसे रहनुमा आए मजहबी जिन्होंने जंगें बर्पा की, लेकिन यीशु मसीह की जिंदगी मिनिस्ट्री के अंदर अमन का दौर था। आमीन। लोगों को उसने शिफा दी, लोगों को चंगा किया, लोगों से प्यार किया, भूखों को खाना खिलाया। अमन ही अमन था, क्योंकि ये बाइबल के अंदर लिखा है यीशु मसीह की जिंदगी अमन की जिंदगी, क्योंकि वो अमन का शहजादा है। आमीन। 7वीं आयत, गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी। आमीन। कैसा दौर होगा? आज इंसान को दरिंदों से डर लगता है, आज इंसान को इंसान से डर लगता है, लेकिन एक ऐसा वक्त आने वाला है कि जब कोई किसी को जर नहीं पहुंचाएगा। और यीशु मसीह की शख्सियत अमन और सलामती की है। सो वो क्या लिखा है? सलामती का क्या होगा? शहजादा होगा। आमीन। 7वीं आयत, गाय और रीछनी मिलकर रहेंगे, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और शेरे बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा। वापस नेचर आ जाएगी, अब गोश्त नहीं खाएगा।
शेर उस दौर में गोश्त नहीं खाएगा, क्योंकि नेचर तब्दील हो जाएगी, इंसानों की नेचर तब्दील हो जाएगी, कंट्रोल होगा, खुदावंद की कुदरत और बादशाही होगी। 8वीं आयत, और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा। ऐसा दौर होगा। मुझे कल पता चला, चर्च का बंदा है, मैंने उसके बारे में किसी दोस्त को पूछा, उस बंदे का दोस्त था, तो कहने लगा कि उसको ना कीड़े ने डसा है, कीड़ा लग गया उसको। सांप नहीं, मोस्टली कीड़ा बोलते हैं। उस दौर के अंदर किसी को कोई कीड़ा नहीं लगेगा, आमीन। कोई सांप नहीं डसेगा, बच्चे खेलेंगे, सांप के बिल के पास वो खेलेंगे और किसी को नहीं जर पहुंचेगा। और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो, अफी के बिल में हाथ डालेगा, वो मेरे तमाम कोई मकदस पर जर ना पहुंचाएंगे, ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है, उसी तरह जमीन खुदावंद के इरफान से मामूर होगी। दुनिया के अंदर फक्त एक इरफान होगा, एक इल्म होगा, और वो यीशु मसीह का होगा, आमीन। सलामती का शहजादा, ये बच्चा जो 2000 साल पहले जिसने जन्म लिया, सलामती का शहजादा, आमीन, हालेलुया। आए एक और हवाला यसाया ही की किताब के अंदर 1000 साल बादशाह के ताल्लुक से, यसाया 2 बाब, तारीफ हो 2 आयत। आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा, और सब कौमें वहां पहुंचेंगी, सब कौमें वहां पहुंचेंगी। यह 1000 साल बादशाह की बात हो रही। बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़े, यानी यकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, आमीन। क्योंकि शरीयत सिय्योन से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादर होगा, यरूशलेम में तख्त उसका होगा। कलाम खुदावंद यीशु मसीह है, वहाँ कलाम सादर होगा। 4 आयत, और वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा, वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा। और क्या लिखा है, और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा, बहुत सी उम्मतों को, कोई किसी की जरूरत नहीं होगी इस दौर में कोई हैंग फैंग करे, ना कोई रशिया, ना कोई चाइना, ना कोई और कौम उसके कहने के मुआफिक चलेंगे, आमीन। जो कुछ वो कहेगा वो होगा, और अमन होगा, कोई किसी के ऊपर कोई चढ़ाई नहीं करेगा, फक्त उसी का नाम होगा। और ज़बूर 72 और ज़बूर 24 उसी दौर की बेसिक जो नुमाइंदगी करते हैं, बयान जाहिर करते हैं। और वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा, बहुत सी उम्मतों को डांटेगा, और वो अपनी तलवारों को तोड़कर भाले और अपने भालों को हंस बना डालेंगे, और कौम पर कौम तलवार ना चलाएगी। ऐसा दौर होगा, और कौम पर कौम तलवार ना चलाएगी, और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। फिर किसी कौम की ट्रेनिंग नहीं होगी छावनियों में, किसी कौम की प्रेयर नहीं होगी, क्योंकि उस दौर में सलामती का शहजादा जमीन पर होगा। कौम पर कौम कोई चढ़ाई नहीं करेगी, कोई जंग करना नहीं सीखेंगे। आज फौजों में भर्ती होती है, पुलिस में भर्ती होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कई कई महीने। उस दौर में किसी की ट्रेनिंग नहीं होगी, शहजादा सलामती का होगा, कलीसिया होगी, फरिश्ते साथ होंगे, और जो कुछ वो करेगा वो होगा, आमीन। ये आयत यूएनओ के हेड ऑफिस, हेड क्वार्टर में न्यूयॉर्क मनी का अमेरिका में लिखी हुई है कि लेकिन ये आज का दौर नहीं। यूएनओ बड़ी कोशिशें करती है, लेकिन वो कौमों में अमन नहीं होता। यूएनओ जब मुल्कों के अंदर जंगें ख़त्म होती हैं, बहुत सारी तकरीरें होती हैं, मना करते हैं, लेकिन बहुत सारे मुल्क मना नहीं होते। यूएनओ कंट्रोल नहीं कर सकती, यूएनओ फेल है अमन कायम करने के लिए। अगरचे पहली जंगे, दूसरी जंग अजीम के बाद यूएनओ कौम क्या में आई, यानी दुनिया की वो कौमें जो यूएनओ के मेंबर हैं, उन्होंने इस बात का तहिया किया कि जंगें दुनिया का हल नहीं बल्कि अमन होना चाहिए। पर यूएनओ नाकाम है, क्यों? कि उनके पास ये कुव्वत नहीं कि वो इंसानों के दिलों को जीत सके। खुदा यीशु मसीह इंसानों के दिलों को जीत लेने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो सलामती का शहजादा है।
یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے سلامتی کا شہزادہ ہے۔ یسایہ 750 سال پہلے بیان کر رہے ہیں کہ یہ بچہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ آمین۔ پھر کیا لکھا ہے؟ اور پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گی قومیں۔ آمین۔ کیسی آیت ہے؟ اس کو دوبارہ پڑھیں 4 آیت سے۔ اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر بھالے اسرا لوگ ضائع کر دیں گے۔ آج دنیا کے اندر اربوں روپیہ ہر کنٹری اپنے دفاعی بجٹ پر خرچ کر رہے ہیں۔ ان کے اپنے قوموں ملکوں کے اندر کال ہے، قومیں بھوکی مر رہی ہیں، لیکن ہر ملک اپنی فوجی قوت کو بڑھانے کے لیے ہر سال اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں بارڈروں کے تحفظ کے لیے، تاکہ دشمن کوئی چڑھائی ان پر نہ کرے، کوئی دوسرا ملک ان پر اٹیک نہ کرے۔ لیکن امن صرف یسوع مسیح کے دور میں ہوگا۔ آج بھی وہ امن کا شہزادہ ہے۔ جس جگہ پر، جس گھر میں اس کا کنٹرول ہے، وہاں امن ہوتا ہے۔ اگر آپ امن چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں، تو یسوع مسیح کو کہنا ہے خداوند تو ہمیں کنٹرول کر۔ آمین۔ تو ہمارے گھر میں حکمرانی کر، تو ہماری زندگی میں حکمرانی کر۔ ہم امن دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سلامتی میں رہنا چاہتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے یوحنا 14:27 کے اندر فرمایا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ سو وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ عبرانی کے اندر شالوم ہے، جس کا مطلب پیس ہے، امن ہے، سلامتی ہے، سکون ہے۔ سلام کا مطلب ہے سلامتی۔ جب ہم کسی کو سلام کہتے ہیں، بھائی جی سلام، بہن جی سلام، اس کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی ہے، امن ہے، آپ پر امن ہو، آپ کی زندگی، آپ کے گھرانے میں سلامتی ہو۔ جب ہمیں کو کہتا ہے، جب ہم بھی کہتے ہیں آپ پر بھی سلام، تو اس کا مطلب ہے آپ پر بھی سلامتی ہو۔ عبرانی لفظ جو یسایہ 9:6 کے اندر ہم نے پڑھا، وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا، شالوم۔ اور یسوع مسیح نے یوحنا 14:27 کے اندر کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ یونانی کے اندر ارینی ہے، جس کا مطلب سلامتی، امن، سکون ہے۔ یسوع مسیح کا تجسم اس دنیا کے اندر سلامتی کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ سلامتی کا شہزادہ پیدا ہوا ہے۔ یہ بچہ دنیا کے اندر صرف اور صرف امن لائے گا۔ کیا لائے گا؟ آج دنیا کے اندر کروڑوں اربوں بچے ہیں، نہ تو وہ بچپن سے امن ظاہر کرتے ہیں، نہ ٹین ایج میں، نہ بڑے ہو کر بڑھاپے تک ان کی زندگی میں امن نہیں ہوتا، نہ وہ امن پیدا کرنے دیتے ہیں۔ لیکن یہ بچہ امن ہی امن پیدا کرے گا۔ سلامتی ہی سلامتی اس دور میں ہوگی۔ لکھا سلامتی کی انتہا نہ ہوگی۔ آمین۔ سلامتی کی میکا بھی اس کو ظاہر کرتا ہے۔ میکا بھی اپنی کتاب کے اندر، میکا نبی بھی فرما رہے ہیں کہ کیسے وہ دور ہوگا اور کیسے۔ میکا 4 باب دیکھیں، اسی آیت کو پھر یہاں روح القدس رپیٹ کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے میکا نبی کی معرفت۔ ہاللیلویہ۔ میکا 4 پہلی آیت، لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا، خداوند کے گھر کا پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا۔ آمین۔ اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا اور امتیں وہاں پہنچیں گی۔ آمین۔ امتیں وہاں یروشلم کے اندر امتیں پہنچیں گی، کیونکہ وہاں خداوند کا تخت لگا ہوگا، دارالخلافہ وہاں ہوگا۔ یاد رکھیں 1000 سالہ بادشاہی میں خدا صرف یروشلم کو چنے گا، کیونکہ بائبل میں لکھا وہ بزرگ خداوند کا شہر ہے۔ آمین۔ 1000 سالہ بادشاہی میں واشنگٹن ڈی سی امریکہ کا شہر نہیں ہوگا، یسوع مسیح نہیں چنے گا۔ لندن نہیں چنے گا برطانیہ کا، شنگھائی چائنا کو نہیں چنے گا، دلی انڈیا کے دارالخلافہ کو نہیں چنے گا، نہ وہ اسلام آباد کو چنے گا، بلکہ یروشلم ہوگا، اور وہاں قومیں جائیں گی خداوند کی عبادت کرنے کے لیے۔ وہ قوموں کا انصاف کرے گا۔ یہ بچہ جو 2000 سال پہلے پیدا ہوا، یہ امن لے کر آیا۔ اس نے اپنے دور، اپنی خدمت کے اندر لوگوں کے ساتھ بھلائی کی، لوگوں کو اطمینان دیا، لوگوں کو تسلی دی، لوگوں کے آنسو پہنچے، بھوکوں کو کھانا کھلایا۔ سو یسوع مسیح کا تجسم، بڑے دن کا مقصد کہ اس دن سلامتی کا شہزادہ پیدا ہوا ہے۔ یہ مہینہ اس بات کی یاد لاتا ہے، دسمبر کا
2000 साल पहले इस दुनिया के अंदर खुदा का बेटा अमन का शहजादा पैदा हुआ। आमीन। इससे किसी को कोई खौफ नहीं, इसके मानने वालों से किसी को खौफ नहीं, बल्कि ये अमन पैदा करते हैं। आए आज यहद करे खुदावंद हमें भी फज़ल बख्श कि हम दुनिया के अंदर अमन सलामती पैदा करें, क्योंकि हमारा बानी, हमारा निजात दहिंदा, हमारा खुदावंद सलामती का शहजादा है। आमीन। हमारी वजह से लोगों को अमन मिले, हमारी वजह से लोगों को सुकून मिले। और दुनिया को आज मैं बताना चाहता हूँ, कोई आपका चर्च, कोई आपका रिलीजन है, किसी भी मुल्क की नेशनैलिटी आपकी है, अगर आप अमन चाहते हैं, यीशु मसीह अमन का शहजादा है। वही सलामती को ला सकता है। आमीन। वही सलामती को ला सकता है। सो कहें खुदावंद मेरी ज़िंदगी में सलामती पैदा कर। अगर आप बेतमनानी का शिकार है, अफरा तफरी का शिकार है, सुकून नहीं मिलता, बाइबल में लिखा वो सलामती का शहजादा है। उसके दौर में, उसके हजूर तो शेरों का भी मुंह बंद हो जाता है। ऐसे ही ना, शेर गर्जना बंद हो जाते हैं। तो फिर हमें भी अमन पैदा करना है। बहुत दफ़ा जो इंसान गरजते हैं बिला जवाज़, उनको अमन की ज़रूरत है कि वो खुदावंद के अमन में रहें, उसकी क़ुव्वत में, उसके ज़ोर में रहें। और वो हर तरह की मुश्किल का हल है, वो सलामती का शहज़ादा है, हर तरह की बरकत उसी के नाम में है। और इसीलिए तो फरिश्ते जब वो पैदा हो रहा है, कभी वो नवी दे रहे हैं कि आज दाऊद के दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। लूका 2 बाब। मत्ती के अंदर हम देखते हैं कि खुदा बयान कर रहा है उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और यूहन्ना रसूल अपने इंजीली बयान में बता रहा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के, ये तो अज़लों ही से खुदा के साथ था, कलाम मुजस्सम हुआ। पहला बाब 14वीं आयत, हमारे दरमियान में रहा, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। आज भी वो कलीसियों में फिरता है, कौमों को आज भी बरकत देता है। जो कौमें उसकी तरफ आती हैं वो उन्हें बुलंद करता है, इज़्ज़त देता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में उसको दावत देते हैं, खुदावंद तू आ मेरी ज़िंदगी के अंदर अमन पैदा कर। वो तो जब लहरों पर चलता है, तूफानों को थमा देता है, कहता है साकन हो जा, अमन हो जा, और लहरें रुक जाती हैं। आमीन। हमारी ज़िंदगी के तूफान रुक सकते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़ी बड़ी मुश्किलें जो है, बदअमनियाँ, बेसकूनियाँ, बेतरतीबियाँ, नाकामियाँ सब ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि जिस जगह पर वो आता है वहाँ खुदा की हुज़ूरी होती है। इसलिए जब वो चरनी में के अंदर पैदा हुआ, पहले ही नबी दे रहा था यूसुफ मरियम को कि ये बच्चा जो पैदा होने वाला है, ये आम बच्चा नहीं, ये खुदा का बेटा, खुदा का कलमा है, ये अमन का शहज़ादा है। ये अमन का क्या है? सलामती का शहज़ादा है। अपने इलाकों में अमन की दुआ करें, अपने मुल्क में अमन की दुआ करें। खुदावंद तू सलामती का शहज़ादा है। हमारे घरों में, हमारे इलाकों में, हमारे शहरों में, हमारे मुल्क में, हमारी दुनिया में अमन हो। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।